Good afternoon, students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class 10th, I am here with you with the new video of chemistry periodic properties of elements. This is the fifth video. Now, we were discussing about the periodicity of elements. Okay. When we were moving in a periodic table from left to right or top to bottom, what properties we are observing? यही हम इसके बारे में पढ़ रहे थे. Now, this is the fifth one which we are going to start. इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है. इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एफिनिटी इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove one electron from its valence shell, as well as electron enthalpy आपका जो है उसी तरह के कॉन्सेप्ट है, बट when an extra electron is added to an atom. ठीक है. when an extra electron is added to its parent atom, that time the energy evolve, जो energy release होती है, that energy is known as the electron enthalpy. ठीक है. that means अगर हम बात करें क्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन जब देते हैं, ठीक है, ठीक, जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो रहा है. तो फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू द Cl नेगेटिव, this kind of energy which has been released over here, that is known as the electron enthalpy or electron gain enthalpy. The amount of energy released when an atom converts into the ion by getting one electron, that is known as the electron gain enthalpy. ठीक है. अच्छा, ऐसे में जैसे आपने उसमें पढ़ा था, इसमें भी डिपेंडेंसी किस चीज़ की है? एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज. जितना ही ज़्यादा एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, जितना ही स्मॉलर होगा एटॉमिक साइज उतना ही एफिनिटी ज़्यादा होगी. स्मॉलर द साइज ग्रेटर द एंथैल्पी. जितना ही ज़्यादा छोटा इलेक्ट्रॉन होगा मतलब उसकी साइज जितनी छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी. तो अगर आप समझो उसको इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक साइज के हिसाब से, तो व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, साइज डिक्रीजेस, इजंट इट? तो साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो एंथैल्पी क्या होगी? इट विल ऑलवेज इंक्रीज. एंथैल्पी विल ठीक. एज ऑब्वियस सी बात है, जितना छोटा साइज उतना ही ज़्यादा उसके जो उसमें न्यूक्लियर पुल होगा, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर पुल होगा दैट व्हेन इट विल बी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उस पर वर्क होगी. ठीक. सेम भी अगर आप बात करें व्हेन यू आर मूविंग टॉप टू बॉटम, व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तब क्या होगा आपका? ठीक है. इसके पहले मैं थोड़ा सा चीज़ और बता दूँ. सेकेंड थिंग इज न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज एज वेल एज द ग्रेटर न्यूक्लियर, आपका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा ग्रेटर होगा आपका एंथैल्पी भी उतनी ज़्यादा ग्रेटर होगी. अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा. When you move from top to bottom, this nuclear charge increases, but enthalpy will decrease from top to bottom. From top to bottom, enthalpy will decreases because this nuclear charge will be overcome by the size. When new cell is introduced in a cell, that time nuclear charge will be greater and enthalpy will be greater and the size will be increased, so that's why the enthalpy will be decreased. Correct? चलिए next topic. We will talk about electronegativity. We will talk about electronegativity. So what observation you will observe
for electronegativity. Basically, before starting this, we should know about this. What is electronegativity? Okay. The tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself. The tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself is called the electronegativity. ठीक है, इसमें भी आपका दो कॉन्सेप्ट आपके क्या आते हैं. दैट वन एटॉमिक साइज है ना, एंड न्यूक्लियर चार्ज, इसके ऊपर डिपेंडेंट आपका है. ठीक है, ग्रेटर द साइज लेसर द नेगेटिविटी. ग्रेटर द साइज नेगेटिविटी क्या होगी, लेसर होगी. मतलब and nuclear charge, greater the nuclear charge, negativity will also be greater. सो साइज आप जैसा कि जानते हो कि जब आप टॉप टू लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, when you are moving from left to right, when you are moving from left to right, तो हमेशा आपका क्या हो रहा है, साइज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, साइज डिक्रीज होता है ना, साइज डिक्रीज होता है. अगर साइज डिक्रीज होगा तो नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा साइज उतना ही कम क्या होगी नेगेटिविटी. तो साइज छोटा होता जाएगा तो नेगेटिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना. बोलिए पॉजिटिविटी में क्या होगा, अगर आपने ये देखा लेफ्ट टू राइट में, ये लेफ्ट टू राइट में नेगेटिविटी वॉज इंक्रीजिंग, negativity was increasing, so from top to bottom it will decrease. ध्यान रखिएगा इस चीज को, नेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट में. ठीक, चलिए. नाउ विल लर्न वन मोर थिंग, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं. डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में, ये क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप. बेसिकली द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड shows resemblance in properties with the third period due to very less electronegative difference. This leads to diagonal. जैसे पीरियड सेकेंड के कुछ मैं एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, पीरियड सेकेंड के मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ. लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है. ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे अगर आप आगे चले जाए. ठीक है, एंड पीरियड थर्ड का लिख रहा हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन सिलिका. ठीक है, सो व्हाट आई सेड कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड shows the resemblance in the properties with the third period to very less electronegative difference. इनके बीच में बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से इनके बीच में एक तरीके की सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखती है. दैट इज नोन एज द, जो ये रिजेंबल करती है इस प्रॉपर्टीज को, इसको हम इसको क्या कहते हैं, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. ठीक है, टू मोर टॉपिक्स आर देयर. वन थिंग इज लेफ्ट, एटॉमिक नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? And then second one is atomic mass. समझ लीजिएगा इसको थोड़ा सा. एटॉमिक नंबर आप किस चीज को समझते हो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा नंबर ऑफ Z होगा उतना ही नंबर ऑफ P होगा, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इज the number of proton present in an atom. ठीक है, is known as the atomic number. और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो मास बेसिकली जो टोटल होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस इज द असेंबलेंस या फिर एक जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, तो दैट्स व्हाई A इक्वल्स टू P प्लस N. ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है. इसमें इतना ऐसा जानना है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय A, एंड दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन
अवेलेबल इन एन एटम. ठीक है. That's it for today. Now this chapter has been finished. So go through the all videos of this chapter and एक बार आप बुक से पढ़ लीजिए. जो भी आपको डाउट समझ में आ रहे हैं एक बार आप पूछ लीजिए इन द ग्रुप. एंड पेज नंबर 16 पे, आपके बुक के पेज नंबर 16 पे there is one थिंग इज गिवन जहाँ पे आपको पूरी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की पूरी एक साथ में डिटेल दी हुई है. लर्न दैट, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ आपको वही चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं. दैट कि सम एलिमेंट्स विल बी गिवन और आपसे जो पूछा जाएगा कि व्हेन यू विल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, या फिर आपको एलिमेंट्स का वो दिया गया उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इज कैरिंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सेक्टिव पॉजिटिविटी ज़्यादा किसकी है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है. ठीक है. दैट्स इट. तो आप इसको थोड़ा सा एक बार ढंग से पढ़ लीजिए एंड ask if you're having problem.